بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد۔ جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں ان کی قدردانی کرو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جن نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں آج امت باغی بن کے استعمال کرتی ہے، کیسے مسلمان ہوئی ہے؟ اللہ کا خوف نہیں، ڈر نہیں کرتے اللہ سے۔ ایک ایک اعضا جو ہے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ ہر انسان کروڑپتی اربپتی ہے۔ اسے بڑے ذکر کیا دو چیزوں کا، آنکھوں کا بھی اور چیزیں ہیں، اور دو میں نے پیدا کی ہے۔ جس کی اہمیت تھی زیادہ کام ہے، اس کو دو دفعہ پیدا کی۔ ایک میں کمی ہو، دوسرا شروع ہو جائے۔ کان، آنکھ، ہونٹ، الفاظ کو کر ہی نہیں سکتا، دونوں ہونٹ جو ہے جب تک ملیں گے نہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے ویسے۔ شفقت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، نجدن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، دونوں پنڈیاں جو ہیں یہ سب اللہ کی نعمت ہیں۔ یہ آج ہم مسلمان ہو کے جو ہے ان سے بغاوت کرتے ہیں۔ جو چیز اللہ نے دی ہے ان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ انہیں میں سے دانت کے بارے میں ابھی وضو کر رہا تھا، اس سے پہلے خیال ہے کہ دیکھو یہ دانت اللہ نے نعمت دی ہے، یہ اگر دانت نہ ہو تو مشغولیت کم کر ہی نہیں سکتے، پورا ہاضمہ خراب جائے گا۔ یہ ہیلپر کہلاتے ہیں، مدد کرنے والے کہلاتے ہیں۔ معدہ اندر ہوتا ہے، منہ میں غذا جاتی ہے، چبانا ضروری ہے۔ کوئی بات نکل لے چلو کچھ دن کام چل جائے گا، بیماری لگ جائے گی اس کو۔ اسی لوگ دانت لگواتے ہیں، مسوڑے کام کر ہی نہیں سکتے۔ کچھ مدت تو ہے بعض مضبوط ہوتے ہیں، لیکن جیسے دانتوں کام کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہیلپر کہتے ہیں، مدد کہتے ہیں اس کو۔ اس کی حفاظت لازم ہے، یاد رکھو۔ اس لیے شاہ علیہ السلام نے مصنون فرمایا مسواک کو۔ 5 مسواک کرو گے تو پوری یہاں پہ سائنس ہی ہے، ڈینٹل کالج میں سکھایا جاتا ہے۔ 32 دانت ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے دانت ہیں، اس کو سمجھنے میں 5 سال لگتے ہیں، اتنی بڑی اہمیت اس کی ہے۔ 5 سال پڑھاتے ہیں دانتوں کے بارے میں۔ آج ہم لوگ نہیں سمجھتے اس کو۔ روٹ کینال سے لے کے اتنی بھی ہے، ہڈی اور اس کی جو چیزیں ہیں، عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اسی میں سے حفاظت کے لیے بار بار کلی کرتے ہیں۔ یہ ہائیجین آ گئی، پوری سائنس آ گئی ہے۔ یہ سوچو کہ اللہ نے منہ دیا ہے، اس کو صاف رکھنا ضروری ہے۔ جب بھی پائریا ہوتا ہے انہی وجوہات سے ہوتا ہے، پیٹ خرابی سے، مسلو خرابی سے۔ جب تم مسواک کرو گے اور 5واں مسواک کرو گے، ویسے کئی جگہ مسواک ثابت ہے آپ سے کرنا۔ نماز تو ہی ہے، سوتے وقت، سو کے اٹھنے کے بعد، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد، اتنی صفائی اللہ تعالیٰ کے نبی نے بتائی، کسی مذہب میں ہے ہی نہیں۔ سائنس نے اسی کو لیا۔ دانتوں میں ذرا سے ہو جائے، پہلے دھیرے دھیرے ہوتا ہے، سارا ان کا بدلنے لگا۔ سفیدی تھی، زردی آنے لگی، پھر سرخی آنے لگی، ابھی صاف نہیں ہوتے، لیئر جمتی جاتی ہے۔ اس کو باقاعدہ مشین آئی ہے، اس کو ڈرل کرتے نکالتے ہیں اس کو۔ آج مسلمانوں کے جانتے نہیں، اللہ کی نعمت دی ہے۔ جب چاہے ہڈی چبا لی، لوگ چباتے رہتے ہیں، چنے چباتے رہتے ہیں، دانت بھی بیکار۔ جب تک دانت سے خوب عمدہ چیز کھاتے ہیں، لیکن اس کی ہم نے خدمت نہیں کی۔ دانتوں نے میری خدمت کی، میں نے خدمت نہیں کی۔ اسی لیے برش میں کر رہا تھا، خیال آیا برش بھی کرو، مسواک بھی کرو۔ برش تو ہوتا ہی ایک بار ہوتا ہے صبح، مسواک 5 بار ہوتی ہے۔ اب کوئی لیئر جمے گی نہیں وہاں پر، کوئی انفیکشن ہوگی نہیں یہاں پر، پائریا نہیں ہوگا یہاں پر۔ فوڈ پارٹیکل جو ہوتے ہیں، زہرات ہوتے ہیں، وہ ریشیو میں جو ہوتے ہیں دانتوں کے جمع ہو جاتے ہیں، اسی کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔
اور اتنا زبردست درد ہوتا ہے دانت کا، لوگ بلبلا جاتے ہیں. ہر درد تکلیف دے، لیکن دانت اور کان کا درد بہت مشکل ہوتا ہے. یہ دیکھو ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم نے پڑھا نہیں، بڑے افسوس کی بات ہے. اور جہاں پڑھائی ہوتی جاتی ہی نہیں ہے، ہائی فائی میں کسان اپنے مگر میں اس میں سوچا بھی نہیں ہم لوگ کو کیوں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. یہ معرفت کے لیے ہے. تم جاؤ دنیا میں، ہم کو پہچانو، ہم تم آزاد دیتے ہیں. قدر جو ہے اس سے پوچھ لو. ہر ایک کی باقاعدہ مشاہدات. دنیا میں ٹیکنالوجی آتی بہت زیادہ ہے، خاص طور سے کلاسک سے لے لی. پیر دوسرے بن جائیں گے، ہاتھ دوسرے بن جائیں گے، لیکن ہم کر ہی نہیں سکتا. وہ بدائی تو لگا دی انہوں نے پیر اور ہاتھ کو، لیکن کوئی کام کر نہیں سکتا. آج ہم مسلمان ہو کے مالک بلا رہے ہیں، ہائی فائی بنے ہوئے ہیں. یہ قوم ملعون ہے یہود و نصارہ، اس نے جو ہے ہمارے اندر ایک چیز پیدا کر دی ہے کہ ان کو مالک سے بھلا دو. اسی کو کہتے ہیں ہم لوگ بہت ہی ایڈوانس ہو گئے. یہ کیا ایڈوانسمنٹ ہے؟ کام میں بہت چوکس رہتے ہیں، دین میں بہت پیچھے رہتے ہیں. ماحول بناؤ دھیرے دھیرے. جب پہلا دور تھا، اول دور جو تھا، اسی لیے اس میں کیٹیگری اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر سورہ واقعہ کے اندر. ایک 3 کیٹیگریز ہیں، ایک بہت قریب، ایک اس کے بعد، ایک اس کے خراب. تینوں بتا دیے اور سب کے بتایا کہ لائبریریز کیا ہے ان کے اندر، خوبیاں کیا ہیں، ان کو کیوں میں نے مقرر بنایا، کیا اس کی خصوصیت بیان فرما دی، ان کو کیوں میں نے درجات دیے، خصوصیت بیان کر دی. قرآن پاک کے اندر سب کچھ موجود ہے. ہم پڑھتے بھی نہیں، صرف الیکشن لڑنا جانتے ہیں. پردھانی الیکشن لڑیں گے، یہاں میں جائیں گے، آیا کے نعرے لگائیں گے، زندہ باد مردہ نعرے لگائیں. یہ کون سے ہوا اسلام؟ سب گنہگار ہیں. اسی لیے اللہ کا عذاب آ رہا ہے. روزی برکت نہیں، اولاد میں برکت نہیں، گھر پریشان حال ہے. پوری دنیا میں علیمی آئی ہے. جو چیز ہے چیز پر ہے. علم بہت سب سے ترغیب دی اللہ تعالیٰ نے علم کے بارے میں. یعنی بہت چیزیں کہہ سکتے تھے مجھ سے یہ مانگو، لیکن یہ نہیں فرمایا. اس میں جو ہے تو ہمیں یہی فرمایا اللہ تعالیٰ، کیا مانگو مجھ سے؟ علم مانگو. اور خالی علم نہیں، زیادہ مانگو. اور بے زندگی علما، مجھ سے زیادہ علم مانگو. یہ اللہ نے حکم دیا. آج ہمارے یہاں میلاد ہوتا ہے، بس وہی 2-4 باتیں بیان کر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ کون سی بھرا بول ہے؟ یہ سب گنہگار ہیں. یہ لوگ جنہیں شرکت وہی گنہگار. مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے یا نبی کے نعرے لگ رہے ہیں، نبی ناراض ہو رہے ہیں. یہ سب اجازت دوسروں کی ہے. ہم کو اسلام نے کوئی امیج جو ہے اس کو بگاڑ دیا، اس کے چہرے کو مست کر دیا. یہی خرافات جو دوسروں کے وہ ہم نے لے لیے. آپ کو اذیت ہوتی ہے، یہ میری امتی کیا کرے، کہاں جا رہی ہے؟ یہ کوئی بات سنا ایسے، ارے وہابی لوگ ہیں. تم جانتے ہو وہابی کہتے کس کو ہے؟ پوری دنیا وہابی ہے، چاہے مسلم یا غیر مسلم. کیوں؟ اللہ کے ماننے والے ہیں، اللہ کے صفات وہاب، ان کے ماننے والے وہابی سب. مسلم غیر مسلم عیسائی جتنے بھی ہیں سب وہابی، اللہ کے ماننے والے ہیں. اللہ کے مخلوق وہابی کہیں گے. ایک فرقہ دے دیا انہوں نے وہابیوں کا، ایسے نام کر دیا انہوں نے. جانتے تو ہیں، علم ہے نہیں ان کے پاس. یہ جہالت دو. گاؤں والے تو جاننے نہیں جاتے، بھولے بھالے ہوتے ہیں. کچھ پیسے خاطر ان کو سکھا دیا رہی ہے وہ وہابی ہیں کہ ایسا کریں، تم ایسا مت کرنا، تم خوب کھلاؤ پلاؤ، خوب تک لڈو تقسیم کرو، میلاد کرو، اس سے نبی خوش ہوں گے. خوش ہوتے ہیں. اور حکایت بیان کی یا نبی سلام علیہ کھڑے ہوئے سب. تحیات واجب ہے، یہاں تو بیٹھ کے پڑھتے درود شریف اور وہاں کھڑے ہو جاتے. کون سی یہ عقل ہے تمہاری؟ عقل ماری گئی تمہاری. یہاں واجب بیٹھ کے پڑھتے ہیں. کوئی کھڑے تحیات پڑھے منع ہے، بیٹھ کے پڑھو.
उस अल्लाह की बीमारी है तो अलग चीज़ है। ततैयात में बैठ के पढ़ते हो दुरूद शरीफ, आप पे सलाम है से यहाँ खड़े हो जाते हैं। ये क्यों? जहालत है हमारी। मुसलमान कौम जो है दूसरों बहक गई, गैरों का शायर है, मुशरिकीन का शायर है। कथा बाचक होती रहती है उनके यहाँ, वो बयान करते हैं भगवान के बारे में, इसके बारे में। वही हमारे अभी आ गया। यह चीज जो है तो आज़ा की हिफाजत को रखना है। हर चीज को अल्लाह ने आंखें दी है, वो जब चाहे इसके जो अजीब टेक्नोलॉजी आँखी वो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम तारीफ इसी कर चुके हैं। दो आंखें दी, इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ, कमी है ही नहीं। और जब इसके मोहल्ले से हो जाता है तो बोलो बिल जाते, नामीना पूछो जाके। जितना चाहे देखते रहते हैं, उन्हीं आंखों से आप नामरम देखते हैं, फिल्में देखते हैं। अल्लाह के सनाए को देखो, फूल पत्ती पहाड़ जितनी चीज को देखो, जितने भी सेक्स ताल्लुक आंखों से होता है इसका। इसीलिए सबसे पहले शेर बताया आंखों की हिफाजत कर लो। पर्दा हो गया, मोमिन से कह दो निगाह नीचे करना, मोमिना से निगाह नीचे, पर्दा हो गया, कोई मुश्किल नहीं। अब एक सब आए थे हैदराबाद के, क्योंकि बुजुर्ग सोबत उठाई, उनके जो क्लाइंट जो थे वो डॉक्टर है मैडम, एक किराया दिन रहते हमेशा आके नीचे रखते थे, उनको आके देखा ही नहीं, उनको देख चले आते थे। कई महीने हो गए। अब देखो ये गैबी मदद उन्होंने तय किया मैं निकाह सानी करूंगी। डॉक्टर है वो, शौहर का इंतकाल हो गया कि मैं निकाह करूंगी। अब अपनी बहन आई थी अमेरिका से, वही पॉलिटी के खातून है, तो उन्होंने बताया, कुछ इशारे बताए उस शख्स को। उन्होंने इससे आगे बात की कि भाई हम तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, कि नहीं तुम्हारी हयात उनको से किया। जाते थे तो वो निगाह नहीं रखते, मुंह बात ही नहीं की उन्होंने। उनको यह बहुत पसंद है कि ये शख्स पायस है, यानी पाक दामन है। निकाह पैगाम खुद उस औरत ने दिया, निकाह कर दिया। खुद बड़ी डॉक्टर है वो, खूब अच्छी प्रैक्टिस है उनकी। ये मुसलमान आज हमारे यहाँ, यानी पहले फौज खिलाता था, भूडा लगे ये रंडी है, आज हर घर में रंडी पैदा होने लगे। पहले मोहल्ले होते थे रंडियों के, इत्तवाज के मोहल्ले होते हैं, वहाँ लोग मशहूर था। ये कोठे वालियाँ, आज पूरे मुसलमान लोग उसे जा रही है, माई खुले हुए, सर खुला हुआ, सीना खुला हुआ, ये उनके अट्रैक्शन कहते हैं उसको, ये उनकी वो है। आज हमारी बच्चियाँ बिल्कुल नेगेट आती हैं, है मुसलमान। मैं ऐसी में हूँ, मैं बेस कर रही हूँ, जीन पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए है, मैं ऐसी कर रही हूँ, बिल्कुल नेगेट, नंगे। ये तो क़यामत का अलामत में से है कि ख़वातीन बिल्कुल नंगी हो जाएंगी। कपड़ा तो हो गया, नाम चलेगा, ऑर्गन जो कहते हैं आज़ाद नजर आएंगे उनके। ये आजकल पहले लोग मायूस समझते थे, इसीलिए पहले लिबास जो था लंबा जम्बर होता था इनको, और या तो गरारा होता था, या शलवार होती, या चूड़ीदार पैजामा। ये ख़वातीन मुसलमानों के खास यही लिबास था। शोरफा जितने पुराने ख़वातीन ने मैं अक्सर देखा, नानी वाला को चूड़ीदार पैजामा, लंबा कुर्ता जो होता था उनका। जवान होती थी वही शलवार पहनती थी, शादी के मौके पर गरारा होता था। ये सब कैटेगरीज थी हमारे यहाँ। इसमें हया भी है, आज़ा की हिफाजत भी है। आज हम तो बिल्कुल आवारा हो रहे हैं, कैसे मुसलमान है ये। तो दांतों के बारे में ये रोजाना ये नियत कर लो, अल्लाह ने एक नेमत दी है मुझको, मैं ब्रश करूंगा, सिर में पेस्ट आ रहे, कोई मना नहीं है, लेकिन पेस्ट में भी दो याद रखो, जिसमें लाल निशान होता है वो होता है मशकूक ही है, कोई ऐसा इंग्रेडिएंट, ऐसा जूस है जो हराम है, उसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जिसमें हरा निशान है वो ठीक ठाक है। इसको बाकायदा गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई, गवर्नमेंट बनाई है। हरा निशान कोई मशहूर चीज़ नहीं है, लाल निशान मशहूर चीज़ दवा में ही है। एक खातून पढ़ लिखी है, डॉक्टर लिखा था, देखा हरा निशान, खाना तो उससे लाल निशान तो वापस किया
कि मैं तो इस पर मशकूक से मौजूद है। हम लोग आए चलते हैं, डॉक्टर बयान कर दिया, कह दिया, लिख दिया। डॉक्टर खुद जो है पढ़ा लिखा ईमानदार वैसा होगा डॉक्टर, मुसलमान कभी नहीं बताएगा। उन्हीं में से भी आप जितने भी हैं बातें टॉनिक कहलाते हैं, वो हम लोग उसको इस्तेमाल करते हैं, उसका हराम चीज़ वजूद है। ब्लड प्लाज्मा होता है, जो कमीले का खून होता है उससे निकालते हैं, वो हराम खून निकलने के बाद हराम हो जाता है। कोई खून पी ले हराम है, उससे दवा बनाई जाती है। खासतौर जिगर के अमराज रहते हैं वो। और ये कि हम इसीलिए खुद जो है इलाज कराओ, लेकिन इलाज में से ख्याल रखना कि हराम चीज़ से ना हो। जहाँ तक हो, एक तो मजबूरी है तो दे सकते हैं उसमें, आम हालत में नहीं। बाज़ अमराज के अंदर हमारे खुद बहुत मौजूद है। खंजीर जो सूअर के दांत बहुत कारामद है, खासतौर पाइल्स के अंदर। इसको सोचता करते हैं, उसको मलहम से बनाते हैं, बहुत मुफीद है वो। इसके अंदर दंदाना जो खंजीर लिखा है उसके अंदर, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट है। लेकिन दांत सब बराबर है, वही दांत खंजीर के हराम हो जाएंगे और जानवर कुछ नहीं। ये है क्योंकि हम लोग मुसलमान साइंस नहीं पढ़ते, मुसलमान होकर जानते नहीं। उलझने बहुत जानते, गाली गलौज दबे दबे जानते हैं, इस पे बहुत आगे हैं। और जो चीज़ इनकरेज करने वाले, तुमको लुभाने वाले, देने वाले, उससे कोई ताल्लुक नहीं मारा है। कैसे मुसलमान है हमारे, ये नाम के मुसलमान, इसीलिए अल्लाह का अज़ाब मारा है हर जगह। अरे उतना ला लो, मुसलमान होकर इससे वाकिफ हो रहे हैं। हर चीज़ के बारे में एक एक चीज़ होती है, उन्हीं में से बाज़ इलाके में आँख को गुस्सा समझा जाता है, यानी इकराम के साथ। अरब में यही है। मेरे एक दोस्त ने बताया कि एक बहुत चमकदार आँखें होती दीदे, वो लखे में खास लोग सबको नहीं दिया जाता। क्या चीज़ है ये? बकरे की आँखें है, हम यहाँ कोई खाते थी उसको। उनके यहाँ इसकी वो है, और ज़ौक़ व शौक़ खाते हैं। हमने अलग माना तो नहीं उसके अंदर, लेकिन कुछ नहीं खाता उसका। तो हर चीज़ की हिफाजत जो अल्लाह ने बनानी है, आज़ा से भी होता है। हम लोग बताते हैं ब्रेन में कमज़ोरी होती है, तुम दिमाग खाओ। गुर्दे में है कमज़ोर, गुर्दा खाओ। फेफड़े में है रंग से इन्फेक्शन है, फेफड़ा खाओ। दिल में तकलीफ, दिल खाओ। हर चीज़ के उस बाकायदा खवास मौजूद है। क्योंकि ये उन्हें पढ़ते नहीं जानते थे, वो तो डॉक्टर चीज़ में डॉक्टर बैठे हुए इसलिए बता रहे हैं। हर एक चीज़ के उनमें चुस्ता होता है बकरी का, आँख के लिए वो मुफीद है, संगीन खिलाते हैं उसको। ये हर चीज़ को अल्लाह ने हिफाजत दे रखी है। लेकिन हमसे ये मुतालबा के देखो तुम हराम से बचना। कितना ज़बीहा दुरुस्त नहीं हो रहा है, हराम खा रहे गोश्त हम लोग। दुआ कबूल नहीं होगी, याद रखो। मुर्ग ज़बीहा दुरुस्त नहीं, गोश्त खा रहे हर जगह मुर्ग है। मुसलमान खाने वाले, खिलाने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले हैं मुसलमान। मुर्ग हराम है ये। ज़बीहा दुरुस्त नहीं किया, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, गर्दन काट दे। और खून के बारे में सर्कुलेशन होता है, इसलिए डॉक्टर बैठे हुए इसलिए। वही खून जो है जब उससे धीरे करोगे एग्जॉस्ट हो जाएगा, निकल जाएगा। और तुम कुछ एकदम काट दोगे तो अंदर खून, अंदर बीमार आ ही नहीं सकता। वो सब चीज़ में हो जाएगा, खून जम जाएगा अंदर जाके, ये जहरीला मादा पैदा कर देगा। सिख कौम के अंदर वो झटका खाती है, मुसलमान की हराम है। और कितने हम लोग बर्गर खा रहे हैं आजकल। KFC जो है इसका बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो अरब के अंदर खुद मक्के मुकर्रमा के अंदर हिलते नीचे उसकी बाकायदा अलग KFC जो कहलाती है यहूदी की। इसमें खंजीर हमेशा खूब खाते मुसलमान, इसीलिए बाहर की टॉफ़ी नहीं खाना चाहिए। इंग्लैंड वगैरह में उसमें हमेशा जिसमें हरा निशानों कोई हर्ज नहीं। ये तहक़ीक़ वाली बात हुई, इसे कोई ऐसा जुज़्व नहीं है। इंग्लैंड की टॉफ़ी और जगह भी है, उन तो खंजीर आम होता है। मक्खन हुआ, टॉफ़ी हुई, नहीं खाना चाहिए। तहक़ीक़ हो जाए ठीक है, ये भेड़ के मक्खन है, ये बकरी का है,
ये गाय का है, जीते तो ठीक है वो, और बहुत अच्छी अच्छी उन बनाई है। उन्हीं में से ये जैतून के बनाते हैं, वह नहीं मिलता, मक्खन बनाते हैं जैतून तेल का, बहुत अच्छा मजेदार भी होता है और फायदेमंद, कोलेस्ट्रॉल है नहीं उसके अंदर। हर चीज का लाने का रिप्लेसमेंट कहते हैं, बराबर दिया है, ये नहीं तो ये ले लो। तो जब ब्रश करो, ये अल्लाह ने एक दांत मुझको दिए, मैं साफ रखूंगा। एक फरिश्तों को ईजा होती है, मुंह से बू आती है उसको, औरों को तकलीफ होती है, पायरिया किसी को है मस्जिद से उसका तुम ठीक हो, तुम घर नमाज पढ़ लो, और ईजा होगी, मुंह से बू आ रही है, सब अजियत होगी, मलाइका बहुत अजियत होती है। इसीलिए कच्ची प्याज, कच्चे लहसुन खाने मना किया है। कच्ची मूली वहाँ पर डकर आएगी, बू होती है उसका, उनको ईजा होती है। बीवी पी के जाना, सिगरेट पी के जाना, उनको ईजा होती है। हम कैसे मुसलमान हैं, दिन भर बीवी पीते रहते हैं। हुजूर मैं जो आती है, मैं खुद कभी लोग आते हैं करीब में नमाज में, बहुत तकलीफ होती है, मलाइका को ज़्यादा तकलीफ होती है, बहुत हंसी होती है। इसीलिए अशार सलाम ने कई जगह मिसवाक के मरगूफ हो, हत्ता कि आपको विशाल हो रहा है, दुनिया जा रहे हैं लेकिन मिसवाक करने गए दुनिया से। आज घर घर ब्रश तो है, मिसवाक नहीं मिलती है। मुल्ला ने लोग मिसवाक करके रहते हैं, समझे है, जानते नहीं। पीढ़ी के अंदर बड़ी कई की अब तो बाकायदा इस वजह से हो चुकी है, बहुत चीज़ इसके अंदर, लोग फिर इसके अंदर है, और चीज़ इसके अंदर है, मिसवाक के अंदर। तो आज यहाँ पर जो नौजवान इसे जो लोग आते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, उनसे ये कि तुम जो हो साइंस पढ़ो, अल्लाह वाले बन जाओगे, मैंने दावा किया है, लेकिन नियत ठीक कर लो। तो जब ब्रश करो, ये नियत से मेरे दांत साफ रहेंगे। हम लोग को ब्रश करते हैं, दिखाने है मेरे दांत बहुत स्मरण चेहरा है, अच्छे दांत नजर आते हैं, नहीं, अल्लाह को पसंद है। जिसने इनको मैंने नेमत दी, मैंने ब्रश से वो जो लेयर होती है उसे छोड़ा दिया। ये चीज है पूरी इसमें। पहले हमारे वालदा सुनाते थे, पहले ज़माने में 2 चीज लाजिम होता था, एक मंजन, एक सुरमा, और आखिरी वक्त तक लोग यानी चांदनी रात में कुरान पढ़ लेते थे। अभी एक हमारे सब है तो उनकी वालदा सोकर लगभग थी, लेकिन इतना रोशनी अच्छी थी, चांदनी रात में कुरान पढ़ लेते थे। और जब से हमने इसको छोड़ा, आजकल तो वही नहीं, एक कारवान है उसके अंदर मुझे हटना चाहते हैं, सुनने से घरना चाहते हैं, बहुत चीज़ इसके अंदर है ऐसे, जो शायद फरमा दिया। स्मृति के बारे में सुनमा है, विजय है इसके अंदर, ये कभी कापर इसके अंदर है, ये वो इसमें खराब ही करता है। ये सब नई टेक्नोलॉजी इन लोगों की। पहले सुरमा हर घर बनाया जाता, लगाया जाता था, सुरमा और मंजन हर घर बन तैयार होता था। अब लोग फौरन जाते डेंटल कॉलेज, डेंटल डॉक्टर के पास, आई हॉस्पिटल पर जाते हैं आँख के सिलसिले में। फिर अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि तुम बाबू तेज रहना चाहते हो, वीजा भी और दिमाग को तुम देख के कुरान पाक पढ़ा करो। ये है आज पूरी उम्मत जो है हमारी आवारा हो रही है, गली गलों में भागे मुसलमान होके इस कदर रात से बेहाई आ रही है, अल्लाह का इसीलिए आ रहा है। पहले लोग इहराम को दाढ़ी देख के इहराम करते थे। एक वाक़या दमिश्क एयरपोर्ट पे हज़रत तशरीफ ले गए थे, बहुत सख्त लोग थे, बड़े मुतशद्दिद, हद का 16 जैसा लिबास, और पे इतनी सख्ती कर रहे थे वो बहुत ज़्यादा। जैसे हद का नंबर आया, उसने उसको वेलकम कहते इस्तेमाल किया, अपनी हेड जो है उतार के, यानी इकराम से आप तशरीफ लाइए। यह है आज हम लोग जो बिल्कुल उसको कहते हैं, वजह कि पूरे उम्मत के अंदर जो है सुन्नत से बगावत हो रही है, ये नसारा की तरफ चल रहा है। नहीं, हम नहीं कह रहे हर चीज में। अब तो एक सुन्नत को उन्होंने ले लिया, पूरे इंग्लैंड में नजर आए थे, ये स्लीपिंग सूट कहलाता है। अब ये हमारा शहर फरमा रात में अपने कपड़े तब्दील कर लो,
ये लोग, इसी का नाम होगा स्लीपिंग सूट। उनके अलग इनर होते हैं, बनने वाले आते हैं, ये स्लीपिंग सूट होता है, उसको लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सोचो ये सुन्नत है, ये पैजामा बता रहा, लुंगी पहन जो इसमें हो, स्लीपिंग सूट हिला, वो कपड़े उतारो दूसरे पहन लो, ये सुन्नत है। ये कौन जानता है? स्लीपिंग सूट बारे बहुत जानते हैं हम। हालांकि उसमें तो है, इसलिए कि वो इनर होता है वो, और बनियान होती है, पूरे हिप्स हो जाते हैं, ऑर्गन हो जाता है। इसलिए धीरे धीरे नफरत पैदा करो पेरेंट्स से। मैं बहन चुका बता रहा हूँ, उससे उससे नफरत क्यों? इसलिए उनकी इजाद है। हमारे आज़ा को शरीयत तुम्हारा क्यों? मुर्दे को नहलाओ, पहले सतह ढको उसका। वो तो है, लोग बनाते बाकायदा कपड़े होते उसके डालने वाले, तब नहलाते उसको। पूरा अपर पार्ट तो खुला रहता है हमारा, नाक से लेकर सर तक सब छुपाते बाकायदा। ये हमारे ये शर्म, इसको कहते हैं क्या औरत क्या मर्द। ये चीजें जो है इस्लाम की चीजों को हाईलाइट करो, उसका प्रोपेगेंडा भी करो, दिल से बुरा मानो। आज हम लोग डिबेट करने लगते हैं, क्या करो तुम डिबेट? नॉलेज है नहीं हमारे पास, जानते कुछ भी नहीं, चुप जाओ फौरन। या जो है उसके बारे में जानता है उससे पूछ के आओ। अच्छी ये चीजें होती है, सोहबत अच्छी मिली। हमारे साथी थे, वो एमए के थे, साइकोलॉजी, हम ये में थे, कंबाइंड स्टडी होती थी। तो उन्हें मालूम होगी साइकोलॉजी बारे में, बहुत अच्छी भी चीज़ है उसके अंदर है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत रूलिंग सब्जेक्ट दोनों है इसके अंदर। बर्बाद करने वाला सब्जेक्ट है, उभारने वाला सब्जेक्ट है। तो दीन की तरफ तवज्जो हो जाए। हर मुसलमान पक्का मुसलमान होना चाहिए, 100% मुसलमान होना चाहिए। गट्स पैदा करो, दिमाग के अंदर चीज़ें हैं, तुमको ओबलाइज करेंगे, मतलब भाई मानेंगे। इस बार में पूरी दुनिया में अमेरिका नंबर 1 आता है। वो ब्रेन को देखते हैं, कास्ट को नहीं देखते, मज़हब को नहीं देखते, वो ब्रेन को देखते, कितना इंटेलिजेंट है ये, उसको देखते हैं। उनकी साइंस बहुत आगे है, अच्छे से ब्रेन को ले लिया उन्होंने। उनका एक बात नहीं है कि ये मुसलमान है या गैर मुसलमान, दिमाग को देखते हैं कितना इसके अंदर हुआ। भाई वहां पर काम कर रहे हैं। आज हम लोग जो है मुसलमान होकर न पढ़ने लिखे बहुत जीरो हो रहे हैं, और कितने कानून नए नए आते रहे कि इनको हटाओ यहाँ से, इनको मिटाई तो अल्लाह इनके पास कर देगा, कभी नहीं होगा ये। लेकिन अज़ा इनके कानून बना रहे हैं, इनको यहाँ हटाओ। और हम मुसलमान होकर हम यहाँ में क्यों? इल्म है नहीं है, जहालत हमारे पास है। हर जगह अपना मनवा देते हैं। अक्सरियत नहीं की है जो नावाक़िफ़ मुसलमान है, वो जानते नहीं दीन के बारे में, वही दस्तखत करा देते हैं। पार्लियामेंट पास है तो मेजॉरिटी है ये। आज हम लोग मुसलमान होकर आपस में इख्तलाफ करते हैं, बस इसमें ये है बरेलवी है, ये देवबंदी है, ये सुन्नी है, वहाबी है, इस पर इख्तलाफ हो रहा है। अल्लाह के बंदे, इस पर क्या इख्तलाफ हो रहा है? तौहीद को तो मानने वाले हैं, अशरार मानने वाले हैं, वो अलग चीज़ है। थोड़ी इसको कहते हैं आइडियोलॉजी, थोड़ी सी फर्क कर दो, कुछ भी चीज नहीं। तो जो काम करो शरीयत क्या कहती है पहले से मालूम करो बस। उसके बाद फिर देखो तुम ही गालिब रहोगे। साहबा ने अपने मिटा दिया बिल्कुल। एक ज़माने बड़े बड़े कीमती लिबास में पहनते थे और सब गरीब बिल्कुल नहीं थे। उसके बाद उन्होंने जो किया, तरजीह देते थे, भाई तुम पहन लो उसको, कोई चीज़ होती आदत तुम ले लो। इक्वलिटी इसको कहते हैं, पूरी सोशल इसको कहते हैं। तरजीह देते मुसलमान को, आपस भाई मुसलमान कोई भी हो, हत्ता कि मुश्रिक की खिदमत करते थे लोग। आज हम लोग जो अलग हो रहे हैं मुस्लिम गैर मुस्लिम में, यही वजह है हमने पैगाम नहीं पहुंचाया सही उन तक, इसे उनसे नफरत कर रहे हैं। पैगाम तो पहुंचाओ उनको, इस्लाम क्या कहता है। अभी एक आया गवर्नमेंट का ऑर्डर, जितने दिन मदारिस में सवाल करो अब क्या पढ़ाई होती है, उन सब वजूहत कराओ कि मेरे मदरसे में इंसानियत सिखाई जाती है, हैवानियत नहीं सिखाती है। न जुल्म करो न करने दो, इंसान मानो हैवान, ये है मदरसा। ये लोग बदनाम करते हैं
टेररिस्ट कहते हैं क्या जानते हैं? सुना इसकी डिफिनेशन तक नहीं जानते, कहते क्या है टेररिस्ट को? हालात कोई नहीं, भाई चीज होती है इनके यहाँ कुछ हाईजैक कर लेते उसको, कुछ नहीं होता, उसको उछाते हैं था, इसके अंदर बड़ी दहशत गर्द हैं ये लोग। वजह है कि हमारी नॉलेज बहुत कम है, पढ़े लिखे भी नहीं है, और कौम जो है बर्बादी में सीधी जा रही है। दीन कुछ तो मालूम करो अपना, हम इस्लाम के बारे में कुछ तो मालूम होना चाहिए। ये चीजें बहुत जरूरी है। इस्लाम के अंदर जो खूबियां ही खूबियां हैं, तो जो काम करो खूब दिलजोई से करो और मेहनत से करो। इसमें अहमद कोटी जिन्होंने वो ऐलान किया है 8,000 नफिल पढ़ेंगे और आइंदा दिन उनका मैंने स्पेशल करके बस ये कोई जगह बॉय बनेंगे, मैं जाती नहीं किसी को। जहाँ जिन बातें सुनाई जाती हो ये जुर्म है, गुनहगार हो जाएगा वो शख्स। यहाँ मलाइका आते हैं, साले जिन्नात भी होते हैं, उनको अजियत होती है, ये सब उन्हीं ईजाद है। कौन सी आफत आ रही है? पहले साइलेंट कर लो उसको। नमाज के जो मस्जिद बंद बैठते रहे सब गुनहगार होते हैं। मोबाइल आम हो रहा है आजकल, ये इनकी ईजाद है। मुतवज्जो करना, तीन बातें सुनाई जा रही, शैतान ने हमला कर दिया। तो हर चीज नसीहत अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर आता है। एक नसीहत अभी याद आई, बहुत प्यारी नसीहत है। फजीलत देखी शाह ने हर एक की फजीलत बयान की। एक इतनी शफकत है उम्मत पर कि मेरा उम्मत इन अमाल कर ले जन्नत चला जाए। उन्हीं में से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकत, बहुत इसकी फजीलत आई है। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहा करो, जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, कसरत से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करो, ये जन्नत के खजानों में से है। इसीलिए हर नमाज के बाद कम से कम 3 बार पढ़ लो, जो मकसद से 3 बार पढ़ लिया करो उसको। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रसूल से रिवायत करते हैं, आपने इरशाद फरमाया, जो शख्स ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े उसके लिए 99 बीमारियों की दवा बन जाती है, जिनमें सबसे कम नदा बीमारी उसका गम है, गम दूर कर देगी। ये चीज़ें क्यों बताई आपने कि हमारा उम्मती इसी कहते हैं ज़बान ज़ाकिर दिल शाकिर। हर नमाज के बाद पढ़ लो, ज़बान ज़ाकिर दिल शाकिर, ज़बान हिली जन्नत मिली। इस तरीके से पूरे तौर पर आज उम्मत जो है हमारे यहाँ इससे गाफिल हो रही है, न जिक्र करती है न तिलावत करती है, बेहूद में बहुत मुब्तला है। तो नमाज कहता हूँ करो, तिलावत कहता हूँ करो, गुनाहों से बचो। वो मलून कौम है, उसकी तरफ बिल्कुल मत, धीरे धीरे शुरू होगा। जब हमने पैंट उतारा तो कमीज थी हमारे पास, कलर थे, हम कहा भाई कुर्ते तो लंबे होते हैं, कमीज छोटी होती है, कि बस खुद गले काटे उसके कलर के, फिर छोटी हो गई, भाई तो कुर्ता है बनना नहीं, कमीज रहेगी। उसके बाद जो उठाया उसको अल्हम्दुलिल्लाह फिर कभी तवज्जो ही नहीं की, हो जाओ उसमें धीरे 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 न उसको कि भाई हमारे नबी क्या फरमाया उसके हम अमल करेंगे। और ये थोड़ी कि हम बिल्कुल उन जैसा बन जाए, ये उन्होंने बड़ी इसमें मेहनत की। ये तो नसारा ने पूरी दुनिया में अपना लिबास जारी कर दिया,
پورے دنیا کے اندر. اس سے نفرت یہ غیروں کی ایجاد ہے اور یہ مخالفت کرتا نبی اس بات, اور جو مخالفت کرے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. وہ وعید بھی آ گئی ہے. تم فتبعونی حکم لازم کرا دیا, میرے نبی کی اتباع کرو. اللہ نے حکم دیا, خالق مالک ہے. یہ آج قوم ہماری جو ہے ان کی اتباع کر رہی ہے. پڑھنا لکھو ہو, شریعت موافق رہو, کامیاب ہے. تو تلاوت کا احترام کرو, سنت موافق, اور نماز پڑھو سنت موافق, اور کچھ وقت نکال اللہ کا ذکر کرو. اور روزانہ یہ جو تم ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں, یہ علیم پڑھو 150 بار. یہ میمورائزیشن کی بات ہے, اس میں میموری تیز ہوتی ہے. یہ علیم, اس یادداشت بڑھے گی, کامیابی ہوگی. دعا کہ اللہ ہماری توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی وسلم. صلی اللہ تعالی. السلام